Hello student, welcome to chemistry class. In today chemistry class we will continue atomic structure and we are studying the wave nature and particle nature of the radiation, electromagnetic radiation, ER. Okay, we are studying wave and particle nature of electromagnetic radiation, and we have completed wave nature of the wave nature of electromagnetic radiation. Now today we will start particle nature of electromagnetic radiation. As we know that wave nature of electromagnetic radiation cannot explain the black body radiation and photoelectric effect. Electromagnetic radiation cannot explain black body radiation and photoelectric effect. Okay, now today we will start the particle nature of the wave. Before starting this, we will see the what is black body radiation and what is photoelectric effect. Okay, now see the black body radiation. What is black body radiation? Okay, we will see here. As we know that a perfectly black body, any perfectly black body can absorb all type of radiations. Okay, any perfectly black बॉडी कैन एब्जॉर्ब द कोई भी सब्सटेंस अगर हीट होता है, ऐसा नहीं कि कोई सब्सटेंस हीट नहीं हो रहा उसको हम ब्लैक बॉडी बोलेंगे। जो भी सब्सटेंस हीट होगा वो ब्लैक बॉडी हो सकती है। ठीक है, ब्लैक बॉडी क्या हो सकती है? जो भी सब्सटेंस, अगर कोई सब्सटेंस हीट हो सकता है, हीट हो रहा है, तो वो क्या होगा? ब्लैक बॉडी होगी। और उससे जो निकलने वाले रेडिएशंस होंगे उसको हम ब्लैक बॉडी रेडिएशंस कहते हैं। ठीक है, if a body, if a substance is heated, then it is known as black body radiation. Black body radiation. Okay, black body radiation. Black body, that is known as black body. The radiation emitted by black body is known as black body radiation. Black body radiation. Okay, and perfectly black body, perfect black body can emit and absorb all type of radiation. Can emit and absorb all type of radiation. All types of
radiation. Okay. Carbon black, example, carbon black. Okay, this is the perfect body. Then what is the, if a substance is heated, known as black body, and the radiation emitted from the substance is known as black body radiation, is known as black body radiation. And a perfect black body can emit and absorb all type of radiation, all type of radiation. Okay, now we will see photoelectric effect. Okay, now we will see the photoelectric effect. What is photoelectric effect? Photoelectric effect. What is photoelectric effect? It is made up of two words, photo and plus electric. Okay, photo means light and electric means electricity. Okay, electricity. Okay, photo means light, electric means electricity. Origin of electricity with the help of light is known as photoelectric effect. इसमें होता क्या है, पहले लिखने से पहले थोड़ा हम समझ जाते हैं कि सपोज ये एक मेटल सरफेस है. क्या है ये? मेटल सरफेस. ओके, इस मेटल सरफेस पे एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट गिरी. सुटेबल फ्रीक्वेंसी. ओके, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं. उनकी अपनी कुछ एनर्जी होती है 12 mv². ठीक है, यहाँ पे जो लाइट जिस एनर्जी की गिर रही है उसकी एनर्जी है h². और यहाँ पे कुछ वर्क हो रहा है, वर्क. ओके, और ये वर्क जो है इतना ये वर्क हो रहा है. ठीक है, तो जब कोई भी एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट किसी मेटल सरफेस पे गिरती है तो एक पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, निकलते हैं. और जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसके अपोजिट में करंट प्रोड्यूस हो जाता है. इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी, प्रोडक्शन ऑफ करंट. करंट का प्रोडक्शन का वो कैसे होगा? जब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होगा. हमें 10th में पढ़ाया जाता है ना कि करंट ऑलवेज फ्लो अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन, यानी कि बिना इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के करंट का फ्लो नहीं हो सकता है. तो करंट का फ्लो कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा. तो जब किसी मेटल सरफेस पे एक सुटेबल फ्रिक्वेंसी की और सुटेबल एनर्जी की लाइट गिरेगी, फॉल ऑन होगी, तो वहाँ से एक सुटेबल काइनेटिक एनर्जी की इलेक्ट्रॉन जो है रिलीज होंगे. और इस फिनोमेना को हम कहते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, you can say photoelectric effect. Note down this, then I will write here. Okay, see, it is when light of
LIGHT, light of a certain frequency fall on metal surface, then electron of some kinetic energy emitted from the metal surface. This phenomena is known as photoelectric effect. Okay, this phenomenon is known as photoelectric effect, and it was discovered by Hertz. ओके, जब भी किसी मेटल सरफेस पर सर्टेन फ्रीक्वेंसी की लाइट गिरती है तो कुछ सम काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं, और इस इमिशन को हम कहते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे वैसे ही करंट फ्लो करेगी। जैसे हमारा सोलर सेल है, उस सोलर सेल में यही प्रोसेस होता है, सन रेडिएशन आता है सिलिका सेल के ऊपर और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, नीचे डॉप्टर लगे होते हैं जिसके थ्रू जो है करंट निकलती है, वो करंट जा कर के बैटरीज को चार्ज करती है डे में, और नाइट में अपने आप बल्ब क्या होते हैं, जल जाते हैं। ठीक है, तो इस फिनोमिना को हम, ये जो है फिनोमिना है, इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से नहीं एक्सप्लेन कर सकते। यहाँ पे ये पार्टिकल नेचर को कहता है। यहाँ पे एक बार फिर से देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को, फिर फार्मूले पे आते हैं। ये हमारा है मेटल सरफेस, मेटल। हम यहाँ पे मेटल ही क्यों लेते हैं, ये तो पता है कि मेटल क्यों लिया गया, नॉन मेटल क्यों नहीं लिया गया। मेटल इसलिए लिया गया कि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं पहली बात, और जो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंडों से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप किए होते हैं, इसलिए यहाँ पे मेटल लिया जाता है। पहला कंडीशन कारण होता है कि यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरा कारण होता है कि जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड होते हैं दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से कंडक्ट हो जाते हैं। तो मेटल इज़ अ गुड इमीटर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए मेटल को हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे सर्टेन फ्रीक्वेंसी की लाइट गिरेगी, इसकी कुछ एनर्जी होगी। ठीक है, ये क्वांटा होता है। क्वांटा क्या होता है, बंडल ऑफ एनर्जी। क्वांटा बंडल ऑफ एनर्जी ओके, बंडल ऑफ एनर्जी। आई बात सुन। अब इसके बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे,
कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी इनकी हाफ mv²। इन इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए कुछ काम करना पड़ा होगा लाइट को क्या करना पड़ा होगा, कुछ काम करना पड़ेगा, वो है वर्क फंक्शन, और ये वर्क फंक्शन h न्यू के बराबर होता है। ठीक है, फिर से सुन लेते हैं। कुछ सर्टेन फ्रीक्वेंसी की लाइट गिरती है जिसकी एनर्जी h न्यू होती है। h न्यू क्वांटा होता है जो बंडल ऑफ एनर्जी होता है। जब वो मेटल सरफेस पे गिरता है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स का कुछ काइनेटिक एनर्जी होता है। इन इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए कुछ लाइट को वर्क करना पड़ा, जिसको हम मेटल का वर्क फंक्शन कहते हैं। हर मेटल का अपना एक वर्क फंक्शन होता है, ठीक है, और ये वर्क फंक्शन h न्यू के बराबर होता है। यहाँ पे h न्यू क्या है, एक मिनिमम एनर्जी, एक फ्रिक्वेंसी है जिससे कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना मेटल सरफेस से शुरू हो जाता है। तो यहाँ से वर्क फंक्शन W इक्वल टू h, ओके, एंड E इक्वल टू h न्यू here, yes, W is equal to, for h न्यू we can write c by lambda maximum wavelength, okay, where W naught is work function, or you can write minimum work required, minimum work required to eject electron from metal surface, and nu naught is the threshold frequency, threshold frequency या minimum frequency required for the radiation, okay, note down. Now we will see, you can note by pausing the video, okay. Total energy for the production of electron, E is equal to kinetic energy plus work function, W, and we know that kinetic energy is equal to what? Kinetic energy is equal to kinetic half mv square plus h न्यू नॉट, एंड हियर E इक्वल टू h न्यू, अभी हमने लिखा था, इसको इधर लेते आते हैं, हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू नॉट, ओके, then what will be, h will be common, h न्यू minus h न्यू नॉट, okay, half mv square ये हमें अगर किसी का काइनेटिक एनर्जी पता करना हो कि इलेक्ट्रॉन किसी मेटल सरफेस से अगर निकल रहे हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वो हम यहाँ से पता कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे एनर्जी और भी फार्मूले हैं यहाँ पे, नोट डाउन फर्स्ट, ओके।
काइनेटिक एनर्जी ऑफ ejected electron equal to h nu minus h nu naught, where h nu naught is the threshold frequency and h nu is the frequency. Threshold frequency क्या होती है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉर द रेडिएशन, वो फ्रीक्वेंसी जिस पे इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से इजेक्ट होना शुरू हो जाए, वो फ्रीक्वेंसी जिस पे इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से इजेक्ट होना शुरू हो जाए बिना जो है कि किसी प्रॉब्लम के, ठीक है, बिना इंतज़ार के अगर वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट उसके ऊपर गिर रही है तो उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन शुरू हो जाए। ओके चलिए ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आएंगे नेक्स्ट, अब पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। ओके, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ओके, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है, हमें पढ़ना है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। ओके, अब प्लांक्स की माने तो प्लांक्स के अनुसार जो एनर्जीज होते हैं वो बंडल के रूप में होते हैं। तो क्या होते हैं? बंडल के रूप में होते हैं। और एक्सप्लेन करता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी होती है फ्रॉम द ब्लैक बॉडी या इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द ब्लैक बॉडी, ये एज ए फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ होती है एट डिफरेंट टेम्परेचर। प्लांक्स की अगर माने तो एक प्लांक्स कहता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन फ्रॉम द ब्लैक बॉडी एज ए फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एट द डिफरेंट टेम्परेचर। किसी भी ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशन का डिस्ट्रीब्यूशन है या रेडिएशन की इंटेंसिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो फंक्शन होता है किसका? फ्रीक्वेंसी का या वेवलेंथ का, वो भी डिफरेंट टेम्परेचर पे, टेम्परेचर अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग होगा, ठीक है। ये है क्वांटम थ्योरी पार्टिकल नेचर के लिए, ठीक है। प्लांक्स explain that distribution of intensity of radiation is function from black body as a function of frequency
frequency or wavelength at different temperature at different temperature. ओके, तो प्लांक्स के हिसाब से क्या हो गया कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द ब्लैक बॉडी एज ए फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी और द वेवलेंथ एट डिफरेंट टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग होता है। ठीक है, चलिए तो इसका फार्मूला देख लेते हैं कैसे। हम लोग जानते हैं E इक्वल टू एच न्यू एंड न्यू इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। ओके, तो जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी एनर्जी कम होगी, जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी। ठीक है, ये रिलेशन होता है। ओके, नाउ नोट डाउन। अब ये तो एक क्वांटा की एनर्जी हो गई। ये जो एनर्जी हो गई, हमने कहा कि जो रेडिएशन होता है प्लांक के हिसाब से उसमें बंडल ऑफ एनर्जी होते हैं जिनको हम क्वांटा कहते हैं। अब एक रेडिएशन के अंदर एक क्वांटा तो होगा नहीं, ढेर सारे हैं। इफ n is the number of quanta, if n is the number of quanta of particular frequency if n is the number of quanta of particular frequency and EP is the total energy, then ET is equal to n h nu। ओके, अगर उस रेडिएशन के अंदर n नंबर ऑफ क्वांटास हैं तो जो टोटल एनर्जी पूरी रेडिएशन की होगी NH न्यू के बराबर होगी। ठीक है, तो ये हो गई क्वांटम थ्योरी। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रा होता है वो दो तरह का होता है, कि इमिशन स्पेक्ट्रा होता है कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है। तो आज हम लोग जो है कि इमिशन स्पेक्ट्रा देखेंगे। ठीक है, आज हमने जो देखा वो पार्टिकल नेचर के बेस पे हम लोगों ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन किया। उसके बाद हम लोगों ने जो है कि एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया और फिर प्लांक्स के क्वांटम थ्योरी को एक्सप्लेन किया कि किस तरह से जो है कि क्वांटम थ्योरी वर्क करती है। जिसमें हम लोगों ने देखा कि अगर ये जो क्वांटा होता है एक बंडल ऑफ एनर्जी होता है, और अगर एक क्वांटा है तो उसकी एनर्जी इतनी होगी और एक क्वांटा है तो इसकी एनर्जी टोटल इतनी होगी। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे इमिशन स्पेक्ट्रा। अब हम लोगों को धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं बोर्स के एटॉमिक मॉडल की ओर। हमें ये सारी चीज़ें क्यों पढ़नी पड़ी? क्योंकि हमें बोर्स का एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन करना था। अब इसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को
हम लोग देखेंगे। पहले तो ये जान लें इमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड लेवल से कुछ एनर्जी के साथ एक्साइटेड स्टेट में जाता है, कहाँ जाता है, एक्साइटेड स्टेट में जाता है। तो एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद वापस वो अपने ग्राउंड लेवल के पास आता है। तो उस दौरान जब वो वापस आता है तो जिस पर्टिकुलर रेडिएशन को लेकर के, एनर्जी को लेकर के ऊपर गया था, उसी एनर्जी की वेवलेंथ वो प्रोड्यूस करना शुरू करता है। फिर से कि जब भी इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी के साथ, पर्टिकुलर वेवलेंथ की एनर्जी के साथ जो है कि एक्साइटेड स्टेट में जाता है, एक्साइटेड स्टेट से जब ग्राउंड स्टेट की ओर वापस आता है तो कुछ न कुछ एनर्जी वेवलेंथ के रूप में, रेडिएशन के रूप में लूज़ करता है। और वो रेडिएशन की जो वेवलेंथ होती है वो पर्टिकुलर होती है जिस वेवलेंथ की एनर्जी उसने पहले एब्जॉर्ब की थी। तो एमिशन स्पेक्ट्रा हाइड्रोजन का हम लोग को देखना है। इसमें कितने तरह के रेडिएशंस होते हैं ये भी जानेंगे हम लोग कल की क्लास में फिर से। थैंक यू, हैव अ नाइस